سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے کے ریکارڈ سفٹنگ کے دوران بڑے انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ ریکارڈ سفٹنگ کے دوران جوہر ٹاؤن کی سینکڑوں فائلوں کے بوگس ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بوگس انتقال اور بوگس خسراجات پر پلاٹوں کی الاٹمنٹ کروائی گئی۔ جوہر ٹاؤن کی 1600 فائلوں پر ایل ڈی اے نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین بتائے گا مزید کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ ارمناز، یہ ایل ڈی اے کی طرف سے جو جوہر ٹاؤن کے ریکارڈ کی سفٹنگ اور ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تھا وہ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری تھا، جو کہ اب مکمل کر لیا گیا ہے، اور اب اس ریکارڈ سفٹنگ کے جو نتائج آئے ہیں اس نتائج میں بڑے انکشافات یہ سامنے آئے ہیں کہ ریکارڈ سفٹنگ کے دوران جوہر ٹاؤن کی سینکڑوں فائلیں ایسی ہیں جن کے بوگس ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور ایل ڈی اے کی ریکارڈ سفٹنگ ٹیم نے جوہر ٹاؤن کی 1600 فائلوں پر ریکارڈ سفٹنگ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جوہر ٹاؤن کے ان پلاٹوں کا بوگس انتقال کیا گیا اور بوگس خسراجات پر ان پلاٹوں کی الاٹمنٹ کروائی گئی۔ اس طرح ایل ڈی اے نے اپنے ہی ریکارڈ پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایل ڈی اے نے جوہر ٹاؤن کے 20,500 پلاٹوں کی ریکارڈ سفٹنگ مکمل کر لی ہے، اور اس ریکارڈ سفٹنگ کے بعد 1600 پلاٹوں کی مزید ٹرانسفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پلاٹ کا این او سی لینے والے مالکان نے بوگس این او سی تیار کروائے، جن کا ماضی میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کے خسراجات ایل ڈی اے کو منتقل کیے گئے تھے، لیکن یہ ڈبل ایگزمپشن کے نام پر اور بوگس فائلیں تیار کر کے یہ اربوں روپے مالیت کے جو پلاٹ ہیں یہ اپنے نام کروائے گئے۔ اس کے علاوہ بوگس فائلوں کی ٹرانسفر کر کے پلاٹوں کا قبضہ بھی حاصل کر لیا گیا۔ مصدقہ ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جوہر ٹاؤن میں افسران کے ساتھ ساز باز کر کے یہ ڈیلر مافیا نے بوگس پلاٹوں کا انتقال کروایا، این او سی اور انتقال کی فائلوں کو سکین بھی نہیں کروایا گیا۔ اس کے علاوہ خسرہ رجسٹر رپورٹ، ایوارڈ رجسٹر رپورٹ اور پوزیشن رپورٹ بھی غلط بنائی گئی، اور اس کے بعد فائلوں میں ان کو ایڈجسٹ کر کے اور جو پلاٹوں کے قبضے ہیں وہ حاصل کیے گئے۔ اس طرح 1600 سے زائد جو پلاٹس ہیں جوہر ٹاؤن میں جن کے اوپر غیر قانونی طور پر قبضے کیے گئے اور اس کے اوپر تعمیرات بھی کی گئی، اب یہ فائل ڈی جی ایل ڈی اے کو پیش کر دی گئی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی طرف سے متعلقہ ڈائریکٹر ہاؤسنگ اور متعلقہ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ان 1600 پلاٹوں کے جو انتقال ہیں ان کو خارج کر کے ان پلاٹوں کے قبضے حاصل کر کے ایل ڈی اے کے پلاٹ بینک میں شامل کیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت یوتھ اور وومن ونگ کا اجلاس تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت کی گئی ہے۔ مریم نواز کی تنظیم مکمل کرنے کی ہدایت ہے، تو وہی نفسیاتی وابستگی اور قربانی دینے والے کارکنان کو ترجیح دینے کی ہدایت ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن رضا سے۔ جی حسن، بتائیے گا انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت جاری ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ اور وومن ونگ کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کی صدارت چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے کی۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کے سینئر جو کہ رہنما ہیں، جس میں مریم پرویز جو ہے ہنا پرویز بٹ اور دیگر افراد بھی موجود تھے، جو اجلاس میں تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت ہوئی۔ مریم نواز شریف کی وارڈ اول تک تنظیم مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے، اور میرٹ کارکردگی، نظریاتی وابستگی اور قربانیاں دینے والے کارکنوں کو اوپر کی سطح پر لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون نوجوانوں اور خواتین کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ایک بار پھر پاکستان نوجوانوں اور خواتین کی ترقی کا سفر شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان اور خواتین کی ہر سطح پر نمائندگی بڑھائیں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں نوجوانوں اور خواتین کی ترقی کے لیے ہمیشہ سے بڑھ کر اقدامات کریں گے۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ نوجوانوں اور خواتین کی معاشی ترقی، روزگار اور ہنرمند بنانے کے لیے تاریخی پیکیج دیں گے، تعلیم، صحت اور کھیل کے شعبوں میں مواقع دیں گے، اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے وسائل فراہم کریں گے۔ نوجوانوں کا مستقبل صرف نواز روشن کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے معاشرے میں یکساں مواقع کی اسلامی یقینی بنائیں گے۔ خواتین اور نوجوانوں کے لیے تعلیم، صحت اور روزگار کے 3 نکات پر جو ہے پالیسی بنائیں گے۔ اسٹارٹ اپ سے حوصلہ افزائی کریں گے اور خواتین کو امپاور کر کے پاکستان کو امپاور کریں گے۔ یوتھ اور وومن ونگ کے عہدیداروں کارکنوں نے مسلسل حوصلہ افزائی پر مریم نواز شریف کا شکریہ۔ ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ حسن آپ کا۔ بتائیں کہ چین کے اعلیٰ پولیس افسران کی ڈیلیگیشن کا ماڈل پولیس اسٹیشن مزدنگ کا دورہ۔ پولیس اسٹیشن مزدنگ کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے
सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी है। डेलीगेशन ने दहशत गर्दी के खात्मे में लाहौर पुलिस के शोहदा की लाजवाब कुर्बानियों को भी सराहा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। चीन के आला पुलिस अफसरान के वफ्द का मॉडल पुलिस स्टेशन मुजंग का दौरा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीनी सूबे जियांगसू के सीनियर पुलिस अफसरान के वफद ने मॉडल पुलिस स्टेशन मुजंग का दौरा किया है। चीनी वफद ने स्पेशल इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन मुजंग के मुख्तलिफ शोबों का मायना किया और शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इसकी लाहौर बरासती मैना ने चीनी वफद को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन की अपग्रेडेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और थाना कल्चर में बेहतरी से मुतल्लिक आगाह किया। चीनी वफद को पुलिस खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, कंप्लेंट पुलिस सिस्टम, एमरजेंसी सर्विस और मिसाक सेंटर से भी आगाह किया गया। इस वाले से सरबराह लाहौर पुलिस का ये कहना है कि मॉडल पुलिस स्टेशन जंग को मुख्तर तरीन मुद्दत में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की सहूलियात से आरास्ता किया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल पुलिस स्टेशन फ्रेंडली पुलिसिंग की दरख्शां मिसाल है। लाहौर का मज़ीद कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से सादे जराइम और कम्यूनिटी पुलिसिंग की इक़दामात में तेजी लाई जाएगी। उनका लाहौर का कहना था कि पुलिस कानून की रवायती कल्चर को अवामी खिदमत मराकज़ में तब्दील किया गया है। पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम को जरूरी खिदमात बर्क रफ्तारी से जो है वो मुहैया की जा रही है। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर आवाम को दी जाने वाली खिदमात काबिल स्तराइश है, ये कहना था चीनी वफद का। वफद ने दहशतगर्दी खाते में लाहौर पुलिस के शोधा की लाजवाब कुर्बानियों को भी सराहा। इस वजह से लाहौर का कहना था कि महकमा पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कर रहे हैं। चीनी स्कूली इदारों की महारत और तजर्बे से उनका कहना है कि इस्तेफादा करेंगे। लाहौर बरासती मैना ने वफद को लाहौर में मुकीम चीनी बाशिंदों समेत आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर इंदराज मुकदमे का खौफ। लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शहरियों का रश। लिबर्टी सेंटर से अब तक 1 लाख से ज़ायद लर्नर लाइसेंस बनाए जा चुके हैं। बात करेंगे जैन अली से। बताइए जैन। जी बिल्कुल, बगैर ड्राइविंग और कम उम्र ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जो है वो जारी है और FIR से बचने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस खिदमत मरकज़ का जो रुख कर रहे हैं और अपना लाइसेंस जो है वो बनवा रहे हैं। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ लिबर्टी लाइसेंसिंग सेंटर में, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है वो मौजूद हैं और अपना लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर कैसे इंतजाम जो हैं वो किए गए, इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज लिबर्टी मॉडल पुलिस खिदमत मरकज़ इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा 15 रोज़ में के दौरान तो 5902 जो FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इस रोज़ में अब तक कितने के यहाँ पे लाइसेंस जो है वो बन चुके हैं क्रैकडाउन के बाद? अस्सलाम वालेकुम जी। अभी इस वक्त क्रैकडाउन के दौरान तकरीबन 1,73,000 कुछ 400 समथिंग हमने लर्नर बनाए हैं। 45,000 लर्नर हमने जो है वो रिन्यू किए हैं और तकरीबन कोई 12,000 जो है ना वो न्यू लाइसेंस जो है ना वो हमने बना के दिए हैं, जिनमें से तकरीबन कोई 200 लाइसेंस जो हैं जो इनके लॉस्ट थे उनको हमने डुप्लीकेट लाइसेंस जो है ना वो जारी किए हैं। और यहाँ पे इस वक्त 24/7 हमारा तमाम स्टाफ मौजूद है जो कि लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे हम मौजूद हैं। और यहाँ पे 8 लर्नर ऑपरेटर्स जो है ना वो लर्नर्स बना रहे हैं। बाकी हमारे 23 काउंटर्स हैं जो सिर्फ ट्रैफिक का काम कर रहे हैं और 7 काउंटर्स हमारा टेस्टिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, अब तक जो है वो 1 लाख से ज़ायद लिबर्टी मार्केट में जो है वो लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस जो है वो बन चुके हैं और 45,000 के करीब और 12,000 के करीब जो है वो दूसरे लाइसेंस जो है वो बन चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सके तो मेरे दाएं जानिब जो है वो शहरियों के लिए बैठने के लिए बाकायदा जो है वो इंतज़ाम भी जो है वो किया हुआ है। टोकन सिस्टम है, टोकन सिस्टम के तहत अपनी जिस टोकन की बारी आएगी उसके मुताबिक जो है वो इधर मेरे बाईं जानिब जो है वो अंदर जाएंगे और अपना लाइसेंस जो है वो बनवाएंगे। 1 लाख से ज़ायद जो है वो लर्नर अब तक बनवा चुके हैं, जबकि 12,000 के करीब दूसरे लाइसेंस जो है वो अब तक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिर्फ लिबर्टी मार्केट में जो है वो बनाए जा चुके हैं। 7 ऑपरेटर्स भी हैं लाइसेंस सेंटर के अलावा, 7 ऑपरेटर्स भी हैं जो यहाँ पर बैठे लर्निंग लाइसेंस जो है वो बनवा रहे हैं। और अब तक 16 रोज़ के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब तक 5,902 कम उम्र बगैर ड्राइविंग गाड़ी चलाने के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया जैन। पाकिस्तान कस्टम्स में असिस्टेंट और हेड क्लर्क्स की भी सुनी गई है। PR ने कस्टम्स के 4 असिस्टेंट और 4 हेड क्लर्क्स को तरक्की दे दी है। अनवर रसूल को बतौर सुप्रीडेंट डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट सेंट्रल लाहौर मुंतकिल कर दिया है, तो वहीं हेड क्लर्क मोहम्मद असलम को डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम्स हैदराबाद लगा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद।
हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान कस्टम्स में असिस्टेंट और गैट क्लर्कों की जो है वो सुनी गई है। एफबीआर ने पाकिस्तान कस्टम्स के 4 असिस्टेंट्स और 4 हेड क्लर्कों को जो है वो अगले ओहदों पर तरक्की दे दी है। असिस्टेंट राजा मोहम्मद वदीद मोहम्मद आकिल याकूब को डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट नॉर्थ कस्टम इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह अनवर रसूल खान को बतौर सुप्रीडेंट डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट सेंट्रल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। हेड क्लर्क मोहम्मद असलम को डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स हैदराबाद लगा दिया गया है। इसी तरह हसन अहमद की खिदमात कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स अप्रेजमेंट फैसलाबाद में बतौर जो है वो सुप्रीडेंट स्पुट कर दी गई है। जफर अली शाह कलेक्ट्रेट ऑफिस कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर में बतौर सुप्रीडेंट तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह असिस्टेंट वकार अहमद को कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स अप्रेजमेंट ऑफ ईस्ट लाहौर में सुप्रीडेंट के तौर पर जो है वो खिदमात देने का हुक्म जारी किया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फहद। तो खबर ये है कि LGA सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा जिनाह सेक्टर के C ब्लॉक को कब्जे देने का फैसला किया गया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में प्लॉटों के कब्जे देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिनाह सेक्टर में प्लॉटों की मार्किंग और सफाई का काम किया जाएगा। प्लॉटों की मार्किंग के लिए 29,35,000 रुपये का तखमीना लगाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा जिनाह सेक्टर के C ब्लॉक को कब्जे देने का फैसला किया गया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में प्लॉटों के कब्जे देने के लिए तैयारियां शुरू। जिनाह सेक्टर में प्लॉटों की मार्किंग और सफाई का काम किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। आज LDA इंतजामिया की तरफ से फैसला किया गया है कि फिरोजपुर रोड पर वाक़ LDA सिटी हाउसिंग स्कीम जिनाह सेक्टर के C ब्लॉक को दिसंबर के पहले हफ्ते में इन अलॉटियों को कब्जे दिए जाएंगे। तो इसी तनाजुर में प्लॉटों के कब्जे देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिनाह सेक्टर में प्लॉटों की मार्किंग और सफाई का काम किया जाएगा। इस सिलसिले में LDA सिटी हाउसिंग स्कीम के C ब्लॉक में प्लॉटों की मार्किंग का काम 29,35,000 रुपये से किया जाएगा। इसी तरह LDA सिटी के C, D, E और F ब्लॉक में झाड़ियां भी साफ की जाएंगी। जिनाह सेक्टर से झाड़ियां साफ करने के लिए भी 29,96,000 रुपये का तखमीना लगाया गया है। LDA सिटी में बिछाई गई सीवर लाइनों पर बेशतर मुकामात पर मैन होल्स मौजूद नहीं है। तो इन मैन होल्स को कवर करने के लिए भी 29,44,000 रुपये का तखमीना लगाया गया है। LDA की जानिब से 7 रोज में जिनाह सेक्टर के ये काम किए जाएंगे। बाद ये C ब्लॉक जिनाह सेक्टर के जो अलॉटिंग हैं उनको कब्जे दिए जाएंगे। ये LDA सिटी हाउसिंग स्कीम जो कि 2014 में वजूद में आई थी, अब 7 साल बाद जो अलॉटिंग है उनको ये कब्जे देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब को LDA सिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग देने के बाद जो प्लॉटों के कब्जे देने का तकरीब है वो रखी जाएगी। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका।